संभवतः भारत में ये एक अपना असाधारण और अभूतपूर्व राजनीतिक दल जिसने सिद्ध किया कि आंतरिक लोकतंत्र और विकास की अवधारणा एक साथ चल सकती है और वास्तव में एक नया राजनीतिक एजेंडा हिंदुस्तान के नक्शे पे दिया। I would like to touch two subjects today. The first is about the presence of Chinese PLA soldiers in the disguise of construction workers in Pakistan occupied area. That area belongs to India and it has been illegally occupied by Pakistan. The Chinese presence in Pakistan occupied area is a matter of grave concern for our security, and there should be a clarification demanded from Chinese, the real purpose of the presence of Chinese soldiers on the LOC, and if some of the analysis of some observers is true that the Chinese presence in Pakistan occupied area is a part of their long-term plan to connect Karakoram highway with Gwadar port. If that happens, this again creates a serious security concern and a threat to the Indian borders. India has been providing proofs to the Pakistan authorities about the existence of terrorist training camps in Pakistan occupied area. Or now that the Chinese presence is also there, Indian government should demand a clarification and investigate if this has some connection, whether the Chinese soldiers' presence in Pakistan occupied area has any connection with the terrorist training camps existing in Pakistan occupied Kashmir. The area belongs to India, and even the Chinese do not concede that Pakistan occupied area is a part of Pakistan. They show Pakistan occupied area out of the map of Pakistan. The Indian Parliament has passed a unanimous resolution to take back the Pakistan occupied area. We demand that the government of India must make it compulsory to put the Pakistan occupied area back from Pakistan on every talks we hold with Pakistan authorities. That should be the part of every talk with Pakistan, that we want our area which is in the illegal occupation of Pakistan, and to implement the unanimous resolution of the Indian Parliament. That should be an important point in any agenda we have with Pakistan. Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh is going to attend the BRICS summit next week to China. We demand that Dr. Manmohan Singh should take up this issue of the Chinese presence in Pakistan occupied area and seek a clarification from the Chinese about it. The second point that I want to take, will take it later, लेकिन मैं हिंदी में जो अभी तक बोला है मैं बता देता हूँ। चीनी सैनिकों की पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर में उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास चीनी सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसकी उपस्थिति के प्रति भारत के सैनिक अधिकारियों ने भी सार्वजनिक चिंता जताई है और भारत सरकार को चीन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उसके सैनिक उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं जो भारत की दृष्टि से कानूनन भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जिस पे अवैध कब्जा किया हुआ है। चीन की सरकार भी उस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानती है और अपने नक्शों में
पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर को वह पाकिस्तानी नक्शे के बाहर प्रदर्शित करती है। उस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति कुछ विश्लेषकों के अनुसार कराकोरम राजमार्ग को ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ने की एक दीर्घकालीन योजना का हिस्सा हो सकती है। यदि यह होता है तो पहली बार चीन की मुख्य भूमि ग्वादर के बंदरगाह से सीधे राजमार्ग द्वारा जुड़ेगी, जो कि चीनी रक्षा विशेषज्ञों का एक पुराना मंसूबा रहा है, और शंघाई पश्चिमी बंदरगाह के निकट हो जाएगा। इसका सैनिक दृष्टि से चीन के लिए अत्यंत महत्व है और भारत की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस मुद्दे को चीन की सरकार के सामने रखें और इस विषय में चीन से स्पष्टीकरण मांगे। यह मुद्दा भारत की संप्रभुता और सार्वभौमिक अस्तित्व का है। हम यह भी मांग करते हैं कि भारत की संसद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया हुआ है, वह प्रस्ताव पाकिस्तान के साथ प्रत्येक बातचीत में अनिवार्य रूप से एक मुद्दे के रूप में होना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा हमारी जमीन पे, हमारे कश्मीर पे किया हुआ है, वह हमको जब तक वापस नहीं मिलता, हमारे संबंधों में नॉर्मेल्सी और शांति नहीं आ सकती। There cannot be any peace between India and Pakistan till Pakistan returns the Pakistan occupied area illegally in its occupation, and it should be done in the letter and spirit of the unanimous resolution passed by the Indian Parliament. दूसरे, कांग्रेस को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि एक उभरते प्रगतिशील जो सॉफ्टवेयर और आईटी और विज्ञान के क्षेत्र में भारत उभर रहा था, उस भारत को आजादी के बाद के सबसे बड़े घोटालों से उसने कलंकित करके आम भारतीय का सर दुनिया में नीचा किया और एक अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानित गांधीवादी को, अन्ना हजारे जी को अनशन पर बैठने के लिए मजबूर किया। ये कांग्रेस के अपराध हैं जिसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस मस्ट apologize to the people of India for giving in a bad name to the country and the people of India who were having a great name in the sphere of information technologies, science, in medical sciences, in engineering, and in entrepreneurship. And for forcing an octogenarian Gandhian to sit on fast to curb corruption. मित्रों, हम भारत के एक संत साईं बाबा के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित हैं। उन्होंने एक आधुनिक संत के नाते प्रगतिशील रवैया दिखाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, पूरे क्षेत्र की पानी की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने अपने भक्तों की शक्ति को लगाया। हम प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। दो ही बातें थी, अगर कोई और प्रश्न होंगे तो मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर दे सकूं। उसका हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। हम हिंदुस्तान के हर उस प्रयास के साथ हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने और उसको नियंत्रित करने, उसे खत्म करने के लिए केंद्रित है। और हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे
कि वह टालम टोल की नीति छोड़े। आज अभी बयान आया है कि अन्ना हजारे चाहते कि एक ही दिन में कुछ हो जाए। एक दिन में आप कातरोकी के खाते खोल सकते हैं, लेकिन एक दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। नहीं तो क्या उसमें 50% लोग जो हैं लोकपाल में वो नॉन पॉलिटिकल सामाजिक लोग होने चाहिए कि नहीं? हर क्षेत्र से लोग होने चाहिए और बेदाग लोग होने चाहिए, ऐसे हों कि जो हिंदुस्तान के प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व करने वाले हों। और अन्ना हजारे जी ने जो मांग की है कि शरद पवार जी उससे जीओएम से हटे, वो उचित मांग की है। तो सर किसी भी लेजिस्लेशन के ड्राफ्टिंग में लेजिस्लेशन का अध्ययन करने के बाद बताया जाएगा। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कड़ाई के साथ में वह कानून बने जो अन्ना हजारे को भी संतुष्ट करे और अन्ना हजारे के साथ उन करोड़ों भारतीयों को संतुष्ट करे जो किसी भी प्रकार से इस देश को भ्रष्टाचार के कलंक से मुक्त करना चाहते हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश में जो जमीन दी गई थी गौशाला ट्रस्ट को, जवाब दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने हो गया सर, हो गया। बीजेपी जमीन जब कर्नाटक का मामला आया हो या उत्तराखंड का मामला आया हो, मतलब बीजेपी की इस तरह मामले क्यों आ रहा है? देखिए, हम कानून पसंद लोग हैं और कानून के बारे में, अदालत के किसी फैसले के बारे में एकदम अचानक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो अदालत का फैसला होगा हम उसका अध्ययन करेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे। अरे पढ़ने तो दो यार। नमस्कार। नहीं, देखिए, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। मैं भी कल गया था, मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान ऊपर बिठाया, अन्ना हजारे ने मुझे बहुत शाबाशी दी। और क्यों हमको वे गलत समझेंगे? उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। हाँ, ओके। हाँ, इस पे तो अन्ना साहब को ही रिएक्ट करना चाहिए। तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वे किसी भी रूप में जुड़े, उसका आदर होना चाहिए। वो कह रहे नहीं चाहिए उनको बीजेपी पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे उनको बीजेपी पे भी भरोसा नहीं है। क्या कहना है आपका? इसका मैंने नहीं सुना है। मैं अन्ना से मिल के आया हूँ और अन्ना ने कहा शाबाश। Very well. He should come out of it and he should be ready to face the prosecution, because now JPC is going to be has been constituted and he will have to appear.